Very good evening to all of you. Greetings for the day. I'm Sayukta from All About Skin Wellbeing. And I'm sure all of you must be doing really good. We all know taking good care of our skin is important for more than just the appearance, as the largest organ, our skin, becomes the most essential to our overall health. A fungal infection is quite common on our skin, nails, and many times on our scalp, and it's important to know about it. So let's connect today with our skin expert, Dr. Omkar Varang, who is joining us live from Mumbai to enlighten us on the topic of fungal infection. Dr. Omkar Varang is an MBBS, DDVL, DNB, Dermatology and Sexually Transmitted Diseases. He is the director of the Hair and Shape Clinic. He's a board certified dermatologist, have over 7+ years of experience in dermatology and hair transplant. He's trained in dermatology and venereology and earned the Diplomate of National Board degree, DLB degree. And his skill and compassion have made a tremendous difference in his patient's life. It's such a pleasure to have you with us, Dr. Omkar Varang. A very warm welcome to you, sir. Thank you, Sanyukta. The pleasure is all mine. And we would definitely love to talk about fungal infection because that is quite prevalent in these months of the year. So we can start this. Absolutely. So this is the yeah, right. So this is the time where a lot of people get fungal infection, and it's important to spread awareness on fungal infection. To start with, doctor, what is fungal infection? How it happens, and which are the body parts where it mostly occurs? Right. So fungal infection is basically caused by a species called as Tinea. It's called as Tinea corporis, Tinea cruris. Okay. There are Okay. species called as Malassezia. Then there are Mentacrophytes. Okay. These are the various species that cause the fungal infection, and they usually occur when the weather is moist. Okay, because that helps the fungus to grow, and it is Right. usually seen in areas which are usually closed, like the underarms, the groin, the back region, where we are always closed in that area, and as a result of which the moisture level increases, and that causes the fungal infection. Right. And doctor, as we spoke that this is the time when there was a surge in the cases of fungal infection. ये वो वक्त है क्योंकि मॉनसून है, कहीं कहीं गर्मी है, ह्यूमिडिटी है, बारिश हो रही है, स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, और ऐसे में फंगल इन्फेक्शन होने का जो रिस्क है वो और ज्यादा बढ़ जाता है. We always say prevention is better than cure, especially in medical field. So any preventive measure that we can take that can save us from catching fungal infection? Right, right. So there are 4 or 5 lifestyle changes that I usually recommend to my patients. Okay, especially in a Okay. city like Mumbai where the weather is always humid, you tend to sweat a lot. Okay, so what we can do is take bath twice daily, if it is possible, even 3 times a day. Right. You can wear loose cotton clothes which are 100% cotton, right? So that the sweat on the skin is absorbed by the material that is on top of your skin. Number three, washing the clothes is very important, and how to wash. Okay, what I usually recommend is take lukewarm water, उसमें थोड़ा पाउडर डाल के रखिए, and then you keep your clothes, immersed in that water, and then you put it Okay. into your washing machine. So that the sweat that is present is completely removed from the clothes. Okay. Number four, your clothes should not be mixed with the other family members' clothes, because it can spread from one family member to the other. And number five, when you're sleeping at night, one should wear very loose clothes so that the sweat does not accumulate, and it's evaporated throughout the night. बिल्कुल, तो इन बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं फंगल इन्फेक्शन होना, हम फंगल इन्फेक्शन से बच सकते हैं। लेकिन अगर हो जाए उससे क्या करना है इस पर हम आगे बात करेंगे। उससे पहले एक बहुत कॉमन टेंडेंसी डॉक्टर जो हमारी सोसाइटी में है, एंड आई एम श्योर आप भी उससे एग्री करेंगे, whenever we have any kind of infection, especially on skin, तो normally डॉक्टर के जाने से पहले हम खुद से बहुत कुछ कर लेते हैं। हम होम रेमेडी उस पर कुछ अप्लाई कर देना। आजकल तो इतने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इन्फ्लुएंसर्स हैं और सारे क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं होते, बट दे लव टॉकिंग अबाउट स्किन रिलेटेड इश्यूज। उन्होंने कुछ बता दिया, हमने लगा लिया, या फिर केमिस्ट शॉप इतना इजीली एक्सेसिबल अवेलेबल है हमारी सोसाइटी में, तो वो तो बहुत ही कॉमन है। वो करे बिना तो शायद हम किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते नहीं है, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। विल टॉक अबाउट इट कि हम गए और कोई क्रीम ले लिया कि भैया रैश हो रहा है, इचिंग हो रही है, कुछ दे दो, उन्होंने क्रीम दिया और हम महीनों लगा रहे हैं उस क्रीम को।
And I'm sure patient comes to you after doing, all of it. What's your opinion on that, doctor? Do they really work or they even worsen the condition? Okay, so we call it then the OTC products, that is the ओवर द काउंटर Hmm. प्रोडक्ट्स, जो आपको कहीं भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएंगे. उसके ऊपर रील्स या वीडियोस भी बनते हैं सोशल मीडिया पे कि ये लगा लो तो तुरंत आपका फंगल इन्फेक्शन निकल जाएगा. तो ऐसा नहीं Ah. होता है. इनफैक्ट वो कंडीशन को और खराब कर देते हैं. तो my general advice for all my patients and everyone out there who's watching us, do not apply any OTC brand on your fungal infection. क्योंकि वो चीज जो फंगल इन्फेक्शन को कम करता है, आपको लगता है कि आपका फंगल इन्फेक्शन कम हो गया है, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो और ज्यादा एग्जासर्बेट और ज्यादा बढ़ जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. So please do not apply any OTC brands. There are multiple available out there. So I would never Hmm. recommend anyone to apply those. Visit your dermatologist, have a consultation with him or her, and then start your treatment. क्या ऐसा होता है डॉक्टर इन ओटीसी प्रोडक्ट्स में? मतलब बचपन से हमने भी, तब तो सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन इतने एड सुने हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन दांत का खाज खुजली के इतने दुश्मनों के एड सुने हैं हमने कि हर घर में होता ही था एक ना एक डब्बा, और अभी भी होता है. और कभी भी कुछ हुआ, अब हमको पता भी नहीं है कि ये फंगल इन्फेक्शन है भी कि नहीं है, दांत खाज है भी कि नहीं है, और हम लगा लेते हैं. तो ऐसा क्या होता है ओटीसी प्रोडक्ट्स में जो वो इतना खराब कर देता है कंडीशन को? राइट. तो यूजुअली ये प्रोडक्ट्स दो चीज़ें कंटेन करते हैं. या तो एक कोई इसमें स्टीरॉयड हो सकता है, या फिर एक केराटोलाइटिक एजेंट हो सकता है. व्हाट डू आई मीन बाय केराटोलाइटिक एजेंट? जो ऊपर का चमड़ा है उसको वो एजेंट जो है वो निकाल फेंकता है. राइट. तो अगर वो हम कम कॉन्सेंट्रेशन में लगाते हैं तब जाके वो फायदा होता है. बट जो ओटीसी प्रोडक्ट में रहता है, इट्स नॉट मेजर्ड. द कॉन्सेंट्रेशन किसी को पता नहीं होता है और लोग बिंदास लगा लेते हैं. तो ऊपर का जो चमड़ा है वो पूरा निकल जाता है. एंड देयर इज अ कंडीशन इन डर्मेटोलॉजी कॉल्ड एज इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस. मतलब वहाँ पे एक एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है क्योंकि वो गलत प्रोडक्ट लगाया था. तो फंगस रही दूर की बात, इनको एक और दिक्कत निर्माण हो जाती है. सो ऑलराइट. प्लीज डू नॉट अप्लाई एनी ओटीसी प्रोडक्ट्स. राइट. तो अगर इमिडिएटली हम किसी डर्मैट के पास जाते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, और तो जितना वक्त लगेगा वो कम लगेगा ठीक होने में, क्योंकि सिर्फ जो प्रॉब्लम है वो है. लेकिन अगर हम बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट करके ओटीसी प्रोडक्ट्स लगा के जाते हैं, तो फंगल इन्फेक्शन तो है ही है, साथ में दूसरी परेशानियां भी हो जाती है. तो ऑफ कोर्स जो ड्यूरेशन है उसके ट्रीटमेंट का, वो भी बढ़ जाएगा. तो अल्टीमेटली जाना तो एक डर्मैट के पास ही पड़ता है. जरूरत इस बात की है समझने की कि हमें सबसे पहले डर्मैट को दिखाना है. तो ये बहुत जरूरी है. एक और प्रॉब्लम डॉक्टर फंगल इन्फेक्शन के साथ जो होती है, एक तो केसेस बहुत बढ़ गए हैं आजकल, बहुत आम हो गया है देखना कि फंगल इन्फेक्शन हो रहा है लोगों को. और दूसरा कि बार बार होता है, एक बार हुआ बार बार हो रहा है. इसके पीछे की क्या वजह है? राइट. सो क्योंकि हम ये ओटीसी प्रोडक्ट्स लगाते हैं तो वो फंगस जो पूरी तरह से निकलता नहीं है. ऊपर से एक कंडीशन जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, या फिर रिकैल्सिट्रिन डर्मेटोफाइटोसिस, ये एक टर्म मेडिकल लिटरेचर में है. तो क्योंकि हम गलत क्रीम लगाते हैं, गलत ट्यूब लगाते हैं, और ट्रीटमेंट भी सब ऑप्टिमल होती है. यूजुअली ट्रीटमेंट किसी को 3 महीना, किसी को 5 महीना, डिपेंड्स इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, उतनी लेनी पड़ती है. अक्सर पेशेंट 1-3 हफ्ता ले लेते हैं, ट्यूब भी नहीं बराबर लगाते, एंड दे आर लाइक अभी सब खत्म हो गया. एंड वापस पसीना आता है, वापस मॉइस्चर बिल्डअप होता है, और वो फंगस वापस अटैक करता है. सो अनलेस एंड अनटिल आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको नहीं बोलते कि अभी आपका फंगस क्योर हो गया है, यू कैन स्टॉप अप्लाइंग द मेडिसिन, तभी आपको दवाई बंद करनी है. No self medication, no self advice. Always consult a dermatologist, and then you can either start or stop your treatment. Right. So the bottom line is that first you need to go and consult a qualified, a board certified dermatologist. Be trust your doctor. Follow what the doctor is asking you to do. Complete the treatment duration. That's equally important. एक और टेंडेंसी डॉक्टर जो होती है हमारी सोसाइटी में, कि मान लीजिए मुझे फंगल इन्फेक्शन हुआ तो मेरे किसी रिलेटिव या फ्रेंड ने अपना प्रेस्क्रिप्शन मुझे दे दिया कि मुझे हुआ था और मैं तो डॉक्टर के पास गया था, तो ये ओटीसी प्रोडक्ट नहीं है, तो डॉक्टर ने ही प्रिस्क्राइब किया था, तुम्हें भी फंगल इन्फेक्शन ही हुआ है, ये लो प्रिस्क्रिप्शन. ये भी बहुत कॉमन है. तो इंडिविजुअलिस्टिक ट्रीटमेंट की जरूरत क्यों होती है? सी, बिकॉज आपके लिए लग रहा है कि वो फंगल इन्फेक्शन है, बट
it need not necessarily be a fungal infection. It could be True. either a bacterial infection, a viral infection, ऊपर से Hmm. देर आर कंडीशन नोट एज कोमॉर्बिडिटीज, मतलब पेशेंट को डायबिटीज हो सकता है, उसमें ये Hmm. जो फंगल इन्फेक्शन के चांसेस वो बढ़ जाते हैं. देर आर सर्टेन एंटी डायबिटीज मेडिसिन और टैबलेट्स जो होती है वो भी फंगल इन्फेक्शन बढ़ाते हैं. तो हम एक कस्टमाइज ट्रीटमेंट बनाते हैं हर एक इंडिविजुअल पेशेंट के लिए. इट्स नॉट Hmm. लाइक वन साइज फिट्स ऑल और वन शर्ट फिट्स ऑल. हर एक Right, बंदा या right. हर एक इंडिविजुअल अलग है, उसका कारण अलग है. हमें उसको एक एनालाइज करना पड़ेगा, असेस करना पड़ेगा, एंड देन वी कैन गिव द ट्रीटमेंट. सो किसी और का प्रिस्क्रिप्शन लेके खुद ट्रीटमेंट करना ये बहुत गलत बात है. राइट. डॉक्टर, अभी आपने बोला कि जो डायबिटिक हैं उनको रिस्क फैक्टर रहता है फंगल इन्फेक्शन का, क्योंकि इम्यूनिटी ऑफ कोर्स उनकी बहुत लो होती है. ऐसे ही जो दूसरे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स हैं, उन्हें कितना ध्यान देने की जरूरत है, किन बातों का ध्यान रखना है स्पेशली इस मौसम में, क्योंकि जैसा हम बात कर रहे हैं बार बार कि ये वो मौसम है जब फंगल इन्फेक्शन के केसेस बढ़ते हैं. तो जो रिस्क पे हैं, एक तो कौन कौन है और किन बातों का ध्यान रखें? Right. So if you're immunocompromised, always consult your physician regarding whatever your immunocompromised condition is, the reason for it, get it treated. और जो स्किन का एस्पेक्ट है, जो फंगल इन्फेक्शन है, वो आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट को बताना है. वो अकॉर्डिंगली मेडिसिन का डोज कम करेंगे, ज्यादा करेंगे, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन लिख देंगे. सो अगेन यू शुड ऑलवेज बी इन टच विद बोथ द स्पेशलिटीज. आप ऐसा नहीं कर सकते कि बस एक ही डॉक्टर को दिखा दिया और पूरा आपका कवर हो जाएगा. क्योंकि स्पेशली डायबिटिक पेशेंट में, क्योंकि शुगर लेवल्स हाई होते हैं, तो देर आर लॉट्स ऑफ चांसेस ऑफ फंगल इन्फेक्शन हैपनिंग इन देम. There are other immunocompromised conditions, connective tissue diseases, HIV, AIDS in such patients as well. Fungal infections are quite common. So always consult both the specialities and then get treated. Right. Doctor, when a patient comes to you with this infection, probably they, as a layman, don't know कि जो है वो fungal infection ही है. तो diagnosis के लिए क्या होता है? क्या physical investigation से ही diagnosis हो जाता है या test भी आप recommend करते हैं? Right. So whenever a case of fungal infection presents to me, first of all, I ask them to do their RBS, their blood sugar levels. We use an instrument called as dermatoscope, to rule out any other cause of those scaly lesions that we see. ठीक है. साथ ही हम अदर बॉडी पार्ट एग्जामिनेशन भी करते हैं कि कोई कोई बार कि मुझे सिर्फ फेस पे खुजली हो रही है, बट उनका जो फोकस रहता है, जो मेन फंगस इज प्रेजेंट इन द ग्रोइन, और पेशेंट बोलते हैं कि हमें तो कोई और दिक्कत नहीं है, तो एक फुल बॉडी एग्जामिनेशन की जाती है. एक स्क्रेपिंग मेथड कहते हैं, मतलब जो स्केल से हम उसको स्क्रेप करते हैं, KOH माउंट करके एग्जामिनेशन होती है. वहाँ पे हम वो देखते हैं फंगल एलिमेंट्स दिख रहे हैं या नहीं. और ऑफ कोर्स हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट से कि उन्होंने और कोई OTC ब्रांड लगाया है या नहीं, और कोई बीमारी है कि नहीं. तो ये सब हम एनालाइज करते हैं. बिल्कुल. OTC प्रोडक्ट जो लगा के आते हैं, उनका प्रेजेंटेशन या उनका जो कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए फंगल इन्फेक्शन का, वो क्या बहुत अलग हो जाता है? उसमें ज्यादा दिक्कत आती है समझने में या डायग्नोस करने में? बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज ये OTC ब्रांड्स यूजुअली स्टीरॉइड्स कंटेन करते हैं, और ये जो स्टीरॉइड जो मॉलिक्यूल है वो ना मॉर्फोलॉजी को अफेक्ट. नो, व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी मतलब एक डिजीज एक प्रकार से चमड़ी पे दिखता है. यू नो जब आप कोई स्टीरॉइड लगाते हो तो फिर वो मॉर्फोलॉजी, मतलब वो पैटर्न को ऑल्टर कर देता है. तो वी एज डर्मैट्स हमें वो थोड़ी दिक्कत होती है कि वो डायग्नोसिस क्या हो सकता है. तो देन वी नीड टू आस्क द पेशेंट द हिस्ट्री कि आपने क्या लगाया है, कब से है, हाउ इज योर लाइफस्टाइल. तो क्योंकि गलत प्रोडक्ट लगाते हैं तो डायग्नोसिस में भी हमें वी फेस चैलेंजेस. Eventually, after proper examination and taking proper history, we do come to the diagnosis. But as a general advice, one should not apply these OTC products, because not only does it hamper you, it also creates challenges for your consulting doctor. ओके. तो डॉक्टर, एज अ लेमन हम कैसे जाने कि जो हमारी स्किन पे हो रहा है वो फंगल इन्फेक्शन है? कैसा दिखता है फंगल इन्फेक्शन? Okay, usually they are round circular manner. Okay, बट वो सर्कल हमेशा ऐसे राउंड नहीं होगा, कभी कभी ऐसे फैला हुआ भी हो सकता है. उस बीच में सेंट्रल क्लियरिंग रहती है, मतलब बीच में कुछ दिखता नहीं है, बगल में ऐसे बॉर्डर्स दिखते हैं. मोस्ट नोटोरियस साइट्स जो होते हैं वो है ग्रॉइन एरिया होता है, अंडर आर्म्स होते हैं, एंड द बटक एरिया होता है. इनफैक्ट फेस पे भी काफी बार आ जाता है.
स्पेशली क्यों आता है? बिकॉज पेशेंट्स जहाँ पे इचिंग हो रही है वहाँ पे इचिंग करते हैं और वही उंगली फिर फेस पे लगा लेते हैं, तो फेस पे भी काफ़ी कॉमन होता है। डायबिटिक्स में इन मेल पेशेंट्स there's a condition called as candidal balanoposthitis, मतलब जहाँ से हम पेशाब करते हैं वहाँ पे काफ़ी कट्स हो जाते हैं, ब्लीडिंग होती है। तो दीज आर ऑल द साइंस एंड सिम्टम्स दैट आपको एक फंगल इन्फेक्शन हो रहा है। बिल्कुल। तो अगर ये साइंस या सिम्पटम्स हैं तो बिना देरी के एक क्वालिफाइड, एक बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से ज़रूर संपर्क करें, और वो इसलिए क्योंकि आपको तो तकलीफ हो ही रही है, आपके भी चांसेस हैं कि दूसरे बॉडी पार्ट्स में भी वो हो जाएगा, लेकिन आपसे दूसरे को भी हो सकता है। डॉक्टर, एक हमारे व्यूअर ने पूछा भी है, टीना भार्गव है, कि इज इट सेफ टू बी अराउंड द पर्सन हु इज हैविंग फंगल इन्फेक्शन? और इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, मान लीजिए फैमिली में, क्योंकि एक बहुत ही क्लोज नेटवर्क में आप रह रहे हैं, किसी को हो गया तो क्या करें कि दूसरों को ना हो? राइट, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज उनके कपड़े अलग से धुलने चाहिए, स्पेशली दी अंडरगारमेंट्स, एंड बाकी परिवार के जो कपड़े वो अलग रहने चाहिए, ठीक है। और जो जिसको दिक्कत हुई है उन्होंने एक बार डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, मेडिसिन चालू करनी है उन्हें, क्रीम्स देंगे, टैबलेट्स देंगे, वो उनके सेपरेट रखने हैं। अक्सर क्या हो जाता है, ये जो टैबलेट्स या मेडिसिन है ये मिक्स हो जाते हैं बाकी परिवार वालों मेंबर के मेडिसिन के साथ। तो दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल इशू दैट वी फेस इन आर ओपीडी कि गलत क्रीम लगा लिया, गलत ट्यूब लगा लिया। तो ये सब दिक्कतें यू शुड ट्राई टू कीप अ गुड वॉच ऑन देम। आपका हाइजीन, आपके कपड़े, आपका बिस्तर, आपकी चद्दर अलग, आपकी इन द सेंस जिसको दिक्कत हुई है उनकी, और बाकी घर वालों के अलग, सो मेंटेन दैट हाइजीन। हम्म, बिल्कुल। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। ट्रीटमेंट ऑप्शंस पर डॉक्टर हम आना चाहेंगे। व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल, और कितना वक्त लगता है स्किन पे जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसे जनरली ठीक होने में? Right. So treatment options may we have topical creams and lotions to apply, and we have tablets, capsules to consume. So these are the mainstay of the treatment. Then we have tablets to reduce the itching, as well as creams to soothe the skin. Okay, this was the treatment aspect. Also, the duration varies from individual to individual. On an average, 3 to 5 months is the average time span जब तक patient को दवाई लेनी है. And unless the doctor says stop the medicine should be continued. And only after the final consultation with the doctor, you can reduce or stop the medicines. Having said that, जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं वो तो आपको जिंदगी भर फॉलो करने हैं, हाइजीन एक मेंटेन करना है, एंड दैट शुड रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। राइट। ओके। ना डॉक्टर, अगर हम बात करें उन एरियाज की, खास तौर पे जहाँ पे बहुत ज्यादा फंगल इन्फेक्शन होने का रिस्क होता है, लेकिन कई बार लोग हिचकिचाते हैं बात करने से, जैसे ग्रॉइन एरिया। कई लोग हैं, स्पेशली महिलाएं, जिनको ग्रॉइन एरिया में फंगल इन्फेक्शन होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो इस पर बात नहीं करते, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। क्या ऐसे लोगों को आप एडवाइस करना चाहेंगे? सी, जो भी दिक्कत है यू शुड बी ओपन अबाउट इट, either to your family members or to your doctor. I understand कि वो शर्म आती है because the area is such that you would not want to show it to anyone. बट क्योंकि आप वो छिपाते हैं तो वो बढ़ता है, बढ़ने के कारण आपकी दिक्कत बढ़ जाती है और दूसरे परिवार वालों में भी वो फैलता है क्योंकि आपके कपड़े मिक्स हो जाते हैं, कंटेजियस है एक प्रकार का, तो दिक्कतें बढ़ जाती है। तो नेवर कंसील योर प्रॉब्लम्स, शेयर इट। अगर आप कोई मेल डर्मेट के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो फीमेल डर्मेटोलॉजिस्ट को बताइए, बट सेल्फ treatment or just hiding it because of feeling ashamed, that should not be the case. बिल्कुल। फंगल इन्फेक्शन है, किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी में हो, ज़रूर एक डर्मैट के पास जाइए, डर्मैट से दिखाइए, और जो इलाज है उसे पूरा कीजिए। जो हाइजीन पॉइंट्स बताए उनका ध्यान तो रखना ही है, हम सबको रखना है और हमेशा रखना है। हमने स्किन फंगल इन्फेक्शन पर तो काफी बात कर ली है डॉक्टर, थोड़ा हम बात करना चाहेंगे नेल रिलेटेड फंगल इन्फेक्शन पर भी। सबसे पहले तो वो कौन लोग हैं जिनको नेल फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं या रिस्क ज्यादा रहता है? राइट, राइट। जिनका काम ज्यादा पानी में रहता है उनको नेल फंगल इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, स्पेशली हाउसवाइफ्स और
पीपल हु वर्क इन द किचन अ लॉट, उनको दिक्कत होती है, क्योंकि क्या हो जाता है, अक्सर पानी में हाथ रहता है तो फिर हमारी जो नेल बेड्स है या जो जो नेल फोल्ड्स है वो हमेशा गीले रह जाते हैं, एंड दे आर नेवर प्रॉपरली ड्राइड. ऑल्सो people don't wear gloves while cooking food or while washing utensils, तो हमेशा पानी कांटेक्ट में आता है, मॉइस्चर बना रहता है, और फंगल इन्फेक्शन, नेल इन्फेक्शन हो जाता है. उसको हम ओनाइकोमाइकोसिस ऐसा कहते हैं. ओके। और ऐसे कई लोग हैं डॉक्टर जो बहुत लंबे लंबे वक्त तक फॉर्मल शूज एंड सॉक्स में जिनको रहना पड़ता है, कई बार घंटों घंटों 8 घंटे 10 घंटे की शिफ्ट है, फील्ड में है, बहुत पसीना आ रहा है पैरों में, लेकिन फिर भी रहता है, उनमें भी कई बार नेल फंगल इन्फेक्शन या फुट फंगल इन्फेक्शन देखने को मिलता है डॉक्टर। यस यस, डेफिनेटली, बिकॉज अगेन वहाँ पे मॉइस्चर बिल्डअप हो जाता है. फॉर्मल शूज पहनते हैं, ऊपर से सॉक्स पहनते हैं, एंड इन मेट्रो सिटीज, यू हैव टू वर्क लाइक 12 hours a shift and it's sweating like crazy. तो वहाँ पे तो टेंडेंसी और ज्यादा बढ़ जाती है. राइट। तो ऐसे में क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं, चाहे वो हाथों के नेल्स हो या Right. टोज हो, As क्या? mentioned earlier, if it is for the fingers, hand fingers, तो आपको ग्लव्स पहनने हैं. जब भी काम हो रहा है तो ग्लव्स पहनने हैं. फिर आफ्टर योर वर्क इज डन, रिमूव द ग्लव्स, ड्राई योर हैंड्स एंड फिंगर्स, एंड देन प्रोसीड फॉर योर नेक्स्ट टास्क. And as for the foot fungal infection, for the foot nail fungal infection, अगर पॉसिबल हो तो वेयर ओपन सैंडल्स और क्रॉक्स कैन डू द जॉब इन सच केसेस, क्योंकि वहाँ पे होल्स रहते हैं वो फुटवेयर में, तो आपके आपके टो नेल्स थोड़े ड्राई रह सकते हैं. बट बॉटम लाइन इज, हैंड के फिंगर्स हो या पैर के नेल फिंगर्स हो, ड्राई रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट्स द बॉटम लाइन. डस्टिंग पाउडर या एंटी फंगल पाउडर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है फुट में, स्पेशली सॉक्स वेयर करने से पहले डॉक्टर? डज इट वर्क? Antifungal powder, I'm not a big advocate of it. I don't really support that. Rather, if you keep the area dry, if you want, आप आपके डॉक्टर को कंसल्ट करके वो राइटिंग में दे सकते हैं कि इनको दिक्कत है पैर की, तो काइंडली परमिट हिम टू अवॉइड वेयरिंग फॉर्मल शूज. दैट इज समथिंग दैट कैन बी डन. एंड किस तरह से इलाज होता है और कितना वक्त लगभग नेल का फंगल इन्फेक्शन लेता है जाने में? तो नेल फंगल इन्फेक्शन इज अ बिट नोटोरियस इन द सेंस, अगर फिंगर नेल्स हैं तो मिनिमम 6 महीने पकड़ के चलिए इलाज के लिए, और अगर टो नेल इन्वॉल्व है तो मिनिमम 12 months का इलाज चलता है. उसमें हम टैबलेट्स देते हैं, आपको एक नेल लैकर देते हैं, and in certain cases even lasers can be used to remove the onychomycotic nail, the nail plate, so that can also be done. ओके, राइट. और इसी तरह डॉक्टर स्कैल्प फंगल इन्फेक्शन भी होता है, वो कैसा दिखता है, क्या होता है, कैसे होता है? राइट. सो इन आवर कंट्री, भारत में कहा जाता है कि आप चंपी करो तो आपके बाल तंदुरुस्त रहेंगे, यू विल गेट गुड हेयर. तो अब मुंबई जैसे शहर में या जहाँ पे ह्यूमिड एनवायरनमेंट ज़्यादा रहता है, वहाँ पे आप अगर और तेल लगाते हो तो फंगस के लिए वो एक फीस्ट हो जाती है. इतना मॉइस्चर है तो फंगस आके तुरंत बैठ जाता है. तो इन सच केसेस ऑयल एप्लीकेशन आपको अवॉइड करना है. यदि लगाना है तो नहाने से केवल 1 घंटा पहले. ओवरनाइट ऑयल एप्लीकेशन या डेली ऑयल एप्लीकेशन तो बिल्कुल ही नहीं करना है. ठीक है. And we have shampoos that can be used to treat that fungal infection, and also no salon procedures are going to help treat the fungal infection, तो वो भी आप याद रखें. ओके. अच्छा, क्योंकि आपने सैलून का जिक्र किया तो एक सवाल मैं वापस हैंड एंड नेल पर आने चाहूंगी. मैनिक्योर पेडिक्योर कई बार लोग कराते हैं सैलून्स में जाके, और उसके बाद उन्हें फंगल इन्फेक्शन होता है. डॉक्टर, वो भी एक रीजन हो सकता है क्या कि उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो प्रॉपर ना हो? डेफिनेटली, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट स्टेरिलाइज करके नहीं यूज किए जाते होंगे, तो किसी और क्लाइंट का जो यूज किया हुआ टूल है वो ही अपने इस पेशेंट पे अगर उन्होंने यूज किया, तो बिकॉज इट इज कंटेजियस, तो इवन दैट कैन बी अ सोर्स ऑफ फंगल नेल इन्फेक्शंस. Right. Now coming back to scalp related fungal infection,
तो ये आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि बालों में या सर में जो हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा ऑब्सेशन है कि तेल लगा के रखना और बहुत लंबे वक्त तक तेल लगा के रखना सर पे, ये इट्स नॉट अ गुड आइडिया फंगल के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज फंगस को बहुत एक प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलता है ग्रो करने के लिए। इसके अलावा डॉक्टर दिखता कैसा है? क्या प्रेजेंटेशन डैंड्रफ जैसा ही होता है? बच्चों में हमने सुना है स्कैल्प का फंगल इन्फेक्शन इज क्वाइट कॉमन। राइट, राइट। तो बच्चों में जो होता है फंगल इन्फेक्शन, देयर इज अ कंडीशन कॉल्ड एज कीरियन, जब ऐसे 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 राउंड जैसा बनेगा, वो काफी इन्फ्लेम्ड रहता है, ऐसे मोटी चीज दिख जाती है। तो ओके। बच्चों में अगर स्कैल्प पे हो रहा है तो दैट इज द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन दैट वी सी। मिडिल एज और एडल्ट्स में यूजली डैंड्रफ इज द कॉमन कंडीशन, जिसमें व्हाइटिश ऐसे फ्लेक्स बनते हैं। हम्म। अगेन, ऐसे अगर व्हाइटिश फ्लेक्स बन रहे हैं तो आपको पहले डर्मेटोलॉजिस्ट को बताना है, बिकॉज या तो स्कैल्प सोरियासिस भी हो सकता है, विच इज अनदर कंडीशन दैट लुक्स लाइक सेबोरिक डर्मेटाइटिस, बट इट माइट नॉट बी अ फंगल इन्फेक्शन। तो अगर कुछ भी बालों में यदि दिक्कत हो रही है तो प्लीज अपने पहले डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। हम्म। कई बार लोग जो है अगेन ओटीसी प्रोडक्ट्स, शैम्पूज, एंटी हेयर फॉल या एंटी डैंड्रफ शैम्पूज का इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारे कॉस्मेटोलॉजिकल ब्रांड्स हैं, मतलब मेडिकेटेड भी नहीं, वो उसकी तरफ भी कई बार जाते हैं। इट्स ऑल मार्केट गिमिक। तो वो क्या, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? डू दे रियली वर्क और वी एक्चुअली नीड टू गो एंड कंसल्ट अ डर्मैट? या बिकॉज वो ब्रांड्स का जो कंटेंट है वो हमें पता नहीं होता है, वो एक टेम्पररी रिलीफ के लिए आप यूज कर सकते हैं, इन द सेंस वो वैसे आप मार्केट करते हैं बट वो टेम्पररी रिलीफ ही देगा आपको। इफ यू वांट टू ट्रीट इट फ्रॉम द रूट, आपको इफ यू वांट अ लॉन्ग टर्म रेमिशन ऑफ द कंडीशन, आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। कोई भी ओटीसी शैम्पू इज नॉट गोइंग टू ट्रीट यू फॉर द लॉन्ग टर्म। तो ये जो स्कैल्प का फंगल इन्फेक्शन है और इसके अलग-अलग टाइप्स एंड वैराइटीज आपने बताई डॉक्टर, तो उसमें क्या हेयर लॉस या कई बार पैचेस में भी हेयर जो है वो चला जाता है क्या? ओके, हेयर लॉस होता है फंगल इन्फेक्शन द्वारा, बिकॉज इन्फ्लेमेशन होता है स्कैल्प पे एंड दैट कंट्रीब्यूट्स टू हेयर लॉस। बट इफ यू ट्रीटिंग हुँ, अ फंगल इन्फेक्शन और अगर आपका फंगल इन्फेक्शन कम हो जाता है, देन वो हेयर लॉस भी धीरे धीरे कम हो जाता है। एक हेयर साइकिल होती है, एनाजन, कैटाजन, हुँ, टीलोजन, दिस इट्स अ हेयर साइकिल। इसके वजह से वो टीलोजन फेज में बाल ज़्यादा चले जाते हैं और फिर हेयर फॉल होता है। बट इफ यू आर गेटिंग योर स्कैल्प ट्रीटेड तो वो सेटल हो जाएगा। सेकेंडली, आप जो पैची हेयर लॉस कह रहे हो, अगेन आपको एक हुँ, डॉक्टर को, एक डर्मेटोलॉजिस्ट को बताना है रूल आउट करने के लिए कि वो एक फंगल इन्फेक्शन है या देयर इज अ कंडीशन कॉल्ड एज एलोपेशिया एरियाटा, जहाँ पे पैची हेयर हुँ। लॉस होता है। वो क्या है, वो आपके हाँ, डर्मेटोलॉजिस्ट एक बार एनालाइज करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे एंड देन यू कैन ट्रीट। ओके। क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं डॉक्टर स्कैल्प के लिए और कितना वक़्त लगता है इसे ठीक होने में? Right. So we have serums available, tablets available, medicated shampoos that are there, and on an average 30 odd days में एक remission आ जाता है। फिर उसको मेंटेन करने के लिए हम वापस एक सीरम या शैम्पू देते हैं, एंड देन इट इज केप्ट अंडर चेक। बट एवरी 3 मंथली और समथिंग अगर आपको इचिंग हो रही है, कुछ दिक्कत हो रही है, तो ओटीसी ब्रांड के बदले आपको पहले डर्मेटोलॉजिस्ट को बताना है, एंड देन प्रोबेबली यू कैन बाय द शैम्पू दैट ही और शी हैज रिकमेंडेड। ओके। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं डॉक्टर स्कैल्प फंगल इन्फेक्शन की अगर हम बात करें, क्या ना करें? Right. So first and foremost, oil application, that is a big no. Salon procedures, okay, again a big no. I know multiple patients of mine have visited the salon, and everyone likes to go to the salon. But I would recommend, keep their usage to the minimal. Secondly, use sulfate-free, paraben-free shampoos when you're having a bath at least twice weekly. हाँ, अगर फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो पहले डर्मेटोलॉजिस्ट को बताइए, फिर वो आपको एक मेडिकेटेड शैम्पू सजेस्ट करेंगे, एंड देन probably you can switch back to your original previous shampoo once the fungal infection is settled, right? राइट। तो ये हमने काफी अच्छी बात स्कैल्प रिलेटेड फंगल इन्फेक्शन पे भी कर ली। इन जनरल अगर हम सभी तरह के फंगल इन्फेक्शन पे बात करें डॉक्टर, तो बहुत सारे हमारे पास सवाल भी आ रहे हैं व्यूअर्स के। एक बहुत आम सवाल ये भी जो बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ने पूछा है कि ये वो वक्त है मॉनसून का जब कपड़े अच्छे से सूखते नहीं है, उनमें एक डैम्पनेस बनी रहती है, वेट ना भी हो तो, और उन्हीं को पहनना मजबूरी हो जाता है। तो क्या उससे भी फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस है, और अगर है तो फिर हम क्या करें?
यस, बिकॉज अक्सर इस वेदर में कपड़े सूखते नहीं है, दे आर स्टिल हम्म, मॉइस्ट, और हम वही कपड़े पहन लेते हैं तो फंगस और हो जाता है। तो एक हम्म, एक प्रैक्टिकल पॉइंट जो मैं पेशेंट्स को बोलता हूँ, इफ यू हैव एन आयरन एट होम, आप हम्म, इस्त्री करके अगर कपड़े पहन लो तो दैट विल हम्म, हेल्प यू अ लॉट इन द लॉन्ग रन। ऑल्सो ट्राई टू वेयर कॉटन क्लोथ्स एंड नॉट नायलॉन और जीन्स, क्योंकि ये जो मटेरियल है ये बाहर दिखने में काफ़ी अच्छा दिखता है बट वो पसीने को अब्सॉर्ब हम्म, नहीं करता है। ऑल्सो कॉटन क्लोथ्स आर क्विक टू ड्राई, तो यदि मौसम भी अगर ऐसा बन रहा है तो भी कॉटन कपड़ा रहेगा तो तुरंत सूख जाएगा, रादर देन योर जीन्स और योर ड्राई फिट मटेरियल। हम्म। कुछ हमारे व्यूअर्स ये भी जानना चाह रहे हैं कि अगर फंगल इन्फेक्शन है तो क्या स्विमिंग पूल जा सकते हैं, स्विम कर सकते हैं? I would recommend no, because you can be a source to spread the fungal infection to others in the community. तो rather हम्म, get your fungal infection treated. एक बार डर्मेटोलॉजिस्ट ने बता दिया कि हाँ अभी पूरा कम हो गया है, then you can हम्म, probably venture into the swimming pool. Also, we usually share the towels sometimes, in the हम्म, swimming pool, जो होटल का होता है, जो भी है, क्लब का स्विमिंग पूल है, so that can also be a source for the fungal infection. So make sure that you carry your own towels to the swimming pool. हम्म। और जिन्हें बार बार फंगल इन्फेक्शन होने की टेंडेंसी है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है डॉक्टर, वो कई बार इस बात से डरते हैं कि पब्लिक स्विमिंग पूल में गए तो हो सकता है फंगल इन्फेक्शन हो जाए। वो क्या ऐसा करें अगर उनको स्विम करना है तो? Again, carrying your own towels, carrying your own clothes, and first getting consult with a dermatologist, making sure that there is no any focus of infection anywhere on the body, and then probably you can venture into a swimming pool. I would still recommend, to stay away from such public swimming pools, because आप कितना भी कर लो, there could be some focus of infection and you might contract it considering you're immunocompromised. So, try to limit the usage as much as possible. राइट। इम्यूनिटी पर वर्क करना कितना जरूरी है डॉक्टर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी को फंगल इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, किसी को नहीं होता है, तो इट्स ऑल मैटर ऑफ इम्यूनिटी इट लुक्स। क्या करें? Exactly. Right. Because stress is a very important factor in all these conditions as well. If your body is under stress, physical stress, mental हम्म, stress, तो थोड़ा immune suppression हो जाता है और वो fungal infection भी काफी हद तक बढ़ जाता है. So trying to hit the gym for me, like I do regularly hit the gym, and try to stay fit, try to stay hygienic, eat clean. High protein diet has always helped everyone. आप अगर वेजिटेरियन हैं, जो मैक्सिमम अपना पॉपुलेशन है भारत का पॉपुलेशन, तो आप ज़्यादा पनीर, सोयाबीन, having a high protein diet is always going to help, and maintaining personal hygiene will go a long way in treating your or preventing the fungal infection. हम्म, राइट। अमित जाटव पूछ रहे हैं, कैन पेट स्प्रेड फंगल इन्फेक्शन? यस, यस, उसको हम इन्फ्लेमेटरी टीनिया ऐसा कहते हैं। वो थोड़ा और ज़्यादा सीवियर होता है, दिखने में भी थोड़ा अलग दिखता है। एंड हम्म, यस, इफ योर पेट हैज़ अ फंगल इन्फेक्शन, प्लीज़ कंसल्ट अ वेटरनरी डॉक्टर, गेट योर पेट हम्म, ट्रीटेड एट द अर्लीएस्ट, बिकॉज़ ऑब्वियसली पेट के साथ फिजिकल कॉन्टैक्ट होगा, तो हमें भी हम्म। दिक्कत हो सकती है। तनिष्का पूछ रही हैं कि क्या लंबे वक्त तक एंटी फंगल ट्रीटमेंट लेना सेफ है, मेडिकेशन स्पेशली? Yes, so we do analyze the patient, we examine, we ask him any other comorbidities, and accordingly आपको medicines दिए जाते हैं। तो आपका जो प्रोफाइल है वो पूरा एनालाइज करने के बाद ही मेडिसिन दिए जाएंगे, सो दे आर कम्प्लीटली सेफ। ब्लड टेस्ट भी किए जाते हैं कोई कोई केसेस में, जस्ट टू सी बिफोर आफ्टर दवाई लेने के बाद कोई दिक्कत तो नहीं हुई है, सो डोंट वरी रिगार्डिंग द ड्यूरेशन ऑफ द हम्म, मेडिसिन। बिल्कुल। हम जब जाते हैं तो डॉक्टर हिस्ट्री पूछते हैं कि पहले क्या हुआ है, कुछ दिक्कत, ये वो तो सब डॉक्टर को बताना जरूरी है। जैसे डॉक्टर ओमकार बता रहे हैं कि ब्लड टेस्ट भी होते हैं। दीपक सक्सेना हमारे साथ है, हमारे व्यूअर, वो पूछ रहे हैं कि रेनी सीजन में क्या ज्यादा चांसेस होते हैं फंगल इन्फेक्शन होने के, और अगर हाँ तो क्यों? बिल्कुल, बिकॉज़ रेनी सीज़न में मॉइस्चर भर जाता है, एंड देन दैट गेट्स एक्यूमुलेटेड इन योर अंडरआर्म्स, इन द ग्रोइन रीजन। ऊपर से जैसे हमने डिस्कस किया, कपड़े सूखते नहीं हैं, वो भी गीले कपड़े पहने जाते हैं, तो मॉइस्चर और बढ़ जाता है, एंड द फंगल इन्फेक्शन स्प्रेड्स रैपिडली।
So try to be as dry as possible in your intimate areas. सुमित सेन का सवाल है, क्या फंगस हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करता है? हालांकि हम लोग सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं डॉक्टर। बिल्कुल, अभी आज का जो टॉपिक है दैट इज अ पार्ट ऑफ सुपरफिशियल डर्मेटोफाइटिस, जो सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन. There is a condition called as deep mycosis, which does affect the internal organs as well. आज की जो बातें हो रही है वो डीप फंगल इन्फेक्शन के बारे में नहीं है, बट अभी जब कोविड हो रखा था तो म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस काफी आपने सुने होंगे. सो दैट कम्स अंडर डीप फंगल इन्फेक्शन, राइट? तो ये दोनों अलग चीजें हैं. बिल्कुल बिल्कुल. फंगल इन्फेक्शन को लेकर हमने काफी बात की है डॉक्टर. चलते चलते इस सेशन को हम एक तरह से सम अप करें, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या करना है, क्या नहीं करना है, खास तौर पे इस सीजन में? बिल्कुल बिल्कुल. सो लाइफस्टाइल चेंजेस आर द पिलर फॉर ट्रीटिंग फंगल इन्फेक्शन. So taking bath twice a day, wearing loose cotton clothes, keeping your clothes separate from the rest of the house members, and wearing loose clothes so that the skin is always dry. Secondly, no OTC products to be used. Always consult your dermatologist, get evaluated, and then follow the treatment. थर्डली, अगर आपको कुछ दिक्कत है तो उसे छुपाए ना. प्लीज कंसल्ट एट द अर्लीस्ट, क्योंकि यदि आप छुपा रहे हो तो यू आर ऑल्सो एक्टिंग एज अ सोर्स टू स्प्रेड इट टू अदर्स. सो एंड ईट क्लीन, ऑफ कोर्स दैट इज द मेन थिंग. ईट क्लीन, hit the gym, and please consult your dermatologist or any other specialty doctor अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो. बिल्कुल. तो हमारी जो हेल्थ है ये हमारे हाथ में ही होती है. तो अगर फंगल इन्फेक्शन की बात करें तो हम अगर सावधानी बरतेंगे तो फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा. अपनी इम्यूनिटी पे वर्क कीजिए, स्वेट इट आउट, गो वर्कआउट, कुछ भी करिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, जो पसंद है वो करिए. लेकिन हाँ, वो जो स्वेट हो रहा है वो प्रॉपरली सूखे, वो एक्यूमुलेट ना हो. इस बात का भी हमें फंगल इन्फेक्शन के लिए तो खास तौर पे ध्यान रखना है. तो जो हाइजीन से रिलेटेड पॉइंट्स डॉक्टर ओमकार ने बताए हैं उनको तो हमें कहते हैं ना, आजीवन आपको इसको फॉलो करना ही है. साथ ही साथ अगर फिर भी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो प्लीज गो एंड कंसल्ट अ बोर्ड सर्टिफाइड, अ क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट. डोंट फॉल फॉर ओवर द काउंटर टॉपिकल एप्लीकेशंस और DIYs एक्सेट्रा. डोंट फॉल फॉर क्वैक्स. कई बार पार्लर या सलून में हो जाता है कि अरे नेल में हुआ है, हम ठीक कर देते हैं, हमारे पास लेजर ट्रीटमेंट है. ऐसा मत कीजिए. जहाँ डॉक्टर है, एक क्वालिफाइड डर्मैट है, उन्हीं के पास जाइए. उन्हीं के क्लिनिक में अगर कोई प्रोसीजर भी ले रहे हैं तो वहीं पे जाइए. ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार छोटी सी गलती हो जाती है और वो फिर बहुत लंबे वक्त तक हमें परेशान करती है. तो आसानी से अगर रिलीफ चाहिए तो सबसे पहले क्वालिफाइड डर्मैट के पास जाइए और ट्रीटमेंट पूरा कीजिए. ट्रस्ट योर डॉक्टर. पूरा ट्रीटमेंट आपको कंप्लीट करना है. दैट इज इक्वली इम्पोर्टेंट. Thank you so very much, Dr. Omkar Waring. It was wonderful talking to you. Thank you for making the whole subject so easy to understand for all of us. बहुत आसानी से अब हम समझ पा रहे हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, खास तौर पे इस सीजन में जब फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपना कीमती वक्त निकाला इस सेशन के लिए. थैंक यू, थैंक यू. द प्लेजर इज ऑल माइन. थैंक यू. थैंक यू डॉक्टर. एंड व्यूअर्स, आप लोगों ने भी बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन इस सेशन में किया, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स ऑन स्किन हेल्थ एंड केयर, stay connected on our FB page, all about skin well-being. We're also available on YouTube, Twitter, and Instagram. Thank you and have a great day ahead. Goodbye.